یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 500, recorded by Mehendi Momin. تو جب یہ زمانہ بہت لمبے ٹائم تک چلا، سکھ کو، راحت کو، آبادی کو، خوشیوں کو ہم روشنی اور نور سمجھتے ہیں جیسا کہ دن ہے. دکھ کو، بے چینی کو اور سکھ کو، پین کو، درد کو، غم کو ہم لوگ رات کے ساتھ، اندھیرے کے ساتھ مثال دیتے ہیں. جب سکھ شانتی ہوتی ہے تو یہ دن کی طرح ہے. دکھوں کو رات کہا. عربی زبان کے اندر رات کو ظلمت بھی کہا گیا. ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں، ظلمت بے عدلی کو کہتے ہیں، انجسٹس کو کہتے ہیں، دکھ کو بھی کہتے ہیں. تو یہ جو مچھلیاں تھیں، جو جیو، مومن جیو تھے، مچھلیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، ان کو کئی نسلوں تک، سینکڑوں برسوں تک جب یہ ظلم بڑھتے گئے، دکھ بڑھتا گیا، یہ تمام سینکڑوں برسوں کا جو پیریڈ دکھ کا تھا، اس کو رات کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. خدا تعالیٰ نے اپنے طاقت سے ایک زبردست مچھی کو ظاہر کیا، اور اس مچھی نے آ کے تمام ان لچوں کو، بدماشوں کو، چوروں کو، دئیتوں کو ختم کر دیا. یعنی سکھ شانتی پھیلا دی. دکھوں کی رات چلی گئی، سکھوں کا دن اگ آیا. 4,32,000 برس کا یہ پیریڈ شروع ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ایک دوسرا پیریڈ شروع ہوا. ہر 4,32,000 برس کے بعد اس طرح کا ایک پیریڈ آتا رہا کہ اس پیریڈ کے اندر رات بھی آئی، دن بھی آیا. یہ جو دکھوں کی رات تھی وہ بھی بڑی لمبی تھی، جیووں کے اوپر، روحانیوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر، چاہے وہ مومن بیکٹیریا ہوئے، چاہے وہ مومن گدھے ہوئے، چاہے وہ مومن بیل ہوئے، چاہے وہ مومن پنچھی ہوئے، چاہے وہ مومن انسان ہوئے. مومن کا مطلب خدا تعالیٰ کے قانون پہ چلنے والا. تو جانوروں کے اندر بھی مومن ہے. تو ان مومنین کو جب یہ دکھ ملا تو خدا نے مچھی کا اپیئرنس لے کے اور وہ جو سنکھاسر تھا اس کو مار دیا. رات ختم ہو گئی، دن اگایا. اس وقت مذہب جو تھا، یعنی خدا کی عبادت وغیرہ، تو اس کو گولڈ ایج ہمارے پیر صدر دین نے کہا. گولڈ ایج وہ سونے کا زمانہ تھا، خالص زمانہ تھا. اور اس زمانے کے اندر 100% لوگ، یعنی وہ زمانے کے جو جیو تھے وہ عبادت کرتے تھے. مگر جب وہ دینت ظاہر ہو کے رات ختم ہو گئی، واپس دن نکلا، تو اس وقت 2.5% گناہ ہوئے. 97.5% پھر صدر دین نے ایکویشن بنائی اس طرح کہ 20 میں سے آدھا ٹکا گناہ، پاپ، نافرمانی، اور 19.5 حصے 20 میں سے، یعنی 97.5% دنیا کے اندر عبادت بندگی اور خدا کے فرمان پہ چلنے کی بات تھی. 4,32,000 برس کے بعد پھر ایسا ہی ایک رات کا، لمبی رات کا زمانہ آیا کہ جو ہزاروں سال تک وہ چلی. جب مومن بہت دکھی ہو گئے تو پھر خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ ابھی میرے مومنوں کو کون دکھ دیتا ہے، تو اس کا نام تھا مدھو کیٹک. مدھو کیٹک کہتے ہیں انسیکٹ ایٹر. مدھو کیٹک دینت کا نام تھا، اس کا مطلب ہے انسیکٹ ایٹر. کیونکہ ایوولوشن بڑھ گئی، مچھلیوں میں سے انسیکٹس جو زمین کے اوپر وغیرہ رہتے ہیں وہ جاری ہو گئے. تو یہ جو انسیکٹ ایٹر کا ایک ایسا جسم تھا اس زمانے کے اندر کہ جو وہ زمانے کے بھگتوں کو، مومنوں کو، جیووں کو جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ان کو جب بہت دکھ دینے لگا تو خدا نے پھر اپنے نور کی، اپنی طاقت کا اظہار کیا. اور وہ اظہار ٹورٹوائز کی شکل میں تھا. ایک بہت بڑا ٹورٹوائز یعنی کاچبا پیدا ہوا. اس کاچبا نے یہ تمام جو انسیکٹ ایٹرز تھے ان سب کو مار ڈالا اور دنیا کے اندر واپس سکھ شانتی ہو گئی. تو یہ دوسری رات کا ظلمت کا پیریڈ ختم ہو کے واپس دن پیدا ہوا. تو اس زمانے کے اندر
जब ये सुख शांति हो गई, आहिस्ता 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 बदियां बुराइयां बढ़ने लगी। एक ऐसा आदमी यानी एक ऐसा जीव फिर पैदा हुआ तीसरी दफा, और तीसरी दफा ये जो पैदा हुआ तो उसका नाम था मोर दानव। तीसरा जो दैत्य था उसका नाम था मोर दानव। मोर दानव कहते हैं बर्ड किलर। बर्ड किलर को मोर दानव कहते हैं। और बर्ड किलर के सामने मौला ने अपने नूर को जो जाहिर किया उसका नाम था व्राह। व्राह मतलब उसका डिक्शनरी के हिसाब से हॉग होता है, HOG। ये सुअर की एक फैमिली है, मगर एक्चुअली व्राह का मतलब मैमल, नॉट डेफिनेटली और सर्टनली हॉग। एनी मैमल फैमिली के जो आज हमको उसका पता नहीं है, लेकिन वो मैमल थे। देखो किस तरह से स्टेज बाय स्टेज एवोल्यूशन बढ़ रही है। तो उसके सामने ये जो बर्ड किलर था, तो ये जाहिर हुआ कि तीसरे पीरियड के अंदर जो 4,32,000 बरस का एक पीरियड है, ऐसे 10 पीरियड हैं, तो तीसरे पीरियड में बर्ड्स पैदा हो गए थे। तो जो बर्ड्स का किलर था उसको इसने मार डाला, यानी मौला ने वापस तीसरी दफा रात का जो हजारों साल लंबी दुख की बात थी, पीरियड था, वो खत्म हो गई और फिर से सुबह हुई, सुख शांति हो गई। तो चौथी दफा भी ऐसा जब हुआ तो चौथी दफा जो जीव बहुत दुखी हुए उनको मारने वाला जो दैत्य था उसका नाम था हरनाकंस। हरनाकंस कहते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ वीक। हरण कहते हैं एक्चुअली डियर को। डियर बेचारा कमजोर जानवर है। तमाम बड़े बड़े खाने वाले जो जानवर हैं, शेर हैं, चीते हैं, वो हरण ही के पीछे लगते हैं। तो हरण बेचारा वीक है, उसको मारने वाला उसका नाम था हरनाकंस। तो हरनाकंस जो था उसकी स्टोरी आज डॉक्टर शिराज ने डिस्प्ले करके बताई, कुछ फोटोज भी बताई। तो किस तरह से हरनाकंस को मारा। हरनाकंस भी इबादत बंदगी करता था, विष्णु को राजी किया और उसके पास से प्रॉमिस ले लिया कि मैं मरूं ही नहीं। तो इसने डिटेल बनाई। विष्णु को कहता है कि मुझे प्रॉमिस कर, मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं। कहा कबूल। न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। विष्णु ने कहा कबूल। न मैं किसी हथियार से मरूं, न किसी जानवर से मरूं, न किसी इंसान से मरूं। कहा कबूल। न रात को मरूं न दिन को मरूं। कहा कबूल। अब ये समझ बैठा कि मैंने तो चारों तरफ से ऐसी दीवार बांधी के मौत घुस ही नहीं सकती, मगर मौला का सामना कोई कर सकता है। मौला ने शेर का अवतार लिया। खुदा का जो नूर था वो उस जमाने के अंदर जो लाइफ थी, आला से आला दर्जे की जो लाइफ थी, उस लाइफ के हिसाब से खुदा ने लायन का एक स्वरूप लिया जो आधा नीचे से इंसान था और ऊपर से यानी दिल के ऊपर से वो शीश शेर की तरह था। हरनाकंस को पकड़ा और दरवाजे के ऊपर बैठा, कुर्सी रख के मौला एक पांव बाहर रखा, एक अंदर रखा। तो न अंदर है न बाहर है। डाला अपनी लैप में, न नीचे है न ऊपर है, अधर है। हथियार से नहीं मारा तो नाखून से उसका पेट फाड़ दिया। और वक्त शाम का था, न दिन थी न रात थी। तो हरनाकंस को इस तरह से बर्बाद किया। और चौथी दफा हजारों वर्षों का जो दुख का पीरियड, जो रात थी ना, उसको खत्म करके वापस दिन उगा दिया, यानी फजर हुई, खुशी का मौका आ गया। और खुदा ताला के जो भगत मोमिनीन थे, उस जमाने के अंदर जो जीव थे, उन बेचारों को सुख मिला। तो ये 4 पीरियड 4,32,000 बरस के जो थे जिंदारों, इसको कहते हैं सतयुग। इसके अंदर मौला के नूर को 4 दफा जाहिर होना पड़ा। अब वो जमाने के अंदर जमीन में से जो स्पेसीज निकलती थी, उस लाइफ का मैं आपको हिसाब बताऊं तो हमारे पीरों ने कहा कि 99 करोड़ी जंक थे। इसको संस्कृत में यक्ष कहते हैं। ये यक्ष क्या है? इंसेक्ट्स, बैक्टीरियाज, इसको यक्ष कहते हैं। इसकी जो स्पेसीज थी, टोटल पॉपुलेशन नहीं, इसके जो कबीले थे, ग्रुप्स थे, स्पेसीज थी, वो 990 मिलियन स्पेसीज थी।
बैक्टीरियाज और इंसेक्ट्स की। साइंस को अभी तक इस बात का पता नहीं है कि वो स्पेसीज की तादाद कितनी थी। ये काउंटिंग पीर ने बनाई है। 990 मिलियन स्पेसीज ऑफ बैक्टीरियाज एंड इंसेक्ट्स। उसके अंदर जर्म्स, बैक्टीरियाज वगैरह, वो लाइफ के जो लाइफ इन वाटर प्रोमिनेंट हुई थी। इसके अंदर से सवाल पैदा होता है। शायद कोई स्कूल का लड़का पूछ बैठे, हाउ डिड ही नो दिस 990 मिलियन स्पेसीज। तो देखो दीनदारों, इमामों और नबियों की जो ताकत है वो रूहानी ताकत होती है। वो लोग जो कुछ कहते हैं वो अपनी नूरानी ताकत से कहते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम एक दिन बैठे कुछ काम कर रहे थे, एक यहूदी निकला। यहूदी हमेशा छेड़ता रहता था मौला को कि किसी तरीके से मौला को मैं डाउन करूं। तो कुछ लोग और भी थे। आगे कहता, या अली, मैंने सुना कि तुम बहुत इल्म वाले हो, तो मुझे एक बात पूछो। मौला पूछो। कहता, या अली, मेरे को बताओ कि कौन से जानवर हैं जो अंडे में से निकलते हैं और कौन से जानवर हैं कि जो माँ के पेट में से यानी डायरेक्टली वूम्ब में से निकलते हैं। मौला अली काम करते करते नजर नीचे ही थी और उसको इसी तरह से फरमान किया कि जो जानवर जिनके कान बाहर दिखते हैं, नजर आते हैं, वो माँ के वूम्ब में से पैदा होते हैं। जिनके कान नहीं दिखते वो अंडे में से पैदा होते हैं। बोलो, किसी साइंटिस्ट ने कहा है आज तक ये बात? और सारी दुनिया में घूम जाओ, मौला की इस बात को जो 1400 साल पहले कही हुई है, आज देख लो, किसी भी जगह देख लो। मैंने एक दफा बैट्स देखे, मेरे खुद के घर के गार्डन में बैट्स आते थे। वो उड़ते थे और उनके कान भी बड़े हैं, चूहे जैसा मुंह है उनका। तो मैं ख्याल करता था कि या मौला, तूने कहा कि जिनके कान बाहर होते हैं वो अंडे में से निकलते हैं, तो ये अंडे कहाँ रखते होंगे? अभी वो बहुत मुद्दत तक रहे। बाइनोकुलर लेग के मैं उनकी स्टडी करता रहा। वो ऊंधे लटकते हैं दरख्तों के ऊपर। जो बैट्स है ना, उनके पीछे 2 हुक्स होती हैं। वो झाड़ के साथ हुक्स लगा के ऊंधे लटकते हैं, पंख बंद कर देते हैं और वहीं उनकी मेटिंग होती है। इसी तरह ऊंधे लटकते लटकते इसी तरह से पड़े रहते हैं और आखिर आहिस्ता आहिस्ता उनके वूम्ब में से बच्चा निकलता है और वो बच्चे की भी पहले हुक्स निकलती हैं, ऊंधा निकलता है। आदमी का तो बच्चा पैदा होता है सिर पहले निकलता है। तो कोई बहुत ही आदमी बदमाश होवे, किसी की नहीं सुने, तो हम उसको कहते हैं कि तो ऊंधो पैदा थी है, यानी पहले पाँव निकले हैं। तो ये जो बैट्स हैं, इनके बच्चे बाहर निकलते हैं, ऊंधे निकलते हैं और इनकी जो हुक्स होती हैं वो झाड़ को पकड़ लेती हैं, माँ हट जाती है और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनको फीड करती है। इस तरह से ये देखो खुदा ताला की कुदरत। लेकिन अली अलैहिस्सलाम ने, हमारे मौला ने 2 फिक्रों के अंदर, 2 छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर साइंस की कितनी बड़ी बात कह दी। तो पीरों ने भी जो कुछ कहा है वो अपनी उसी नूरानी ताकत के हिसाब से कहा है। तो दिनदारों, ये सतयुग का पीरियड 17,28,000 बरस का पूरा हुआ। इसमें 4 दफा मोमिनों के ऊपर, जीवों के ऊपर दुख पड़े जो हजारों साल तक चलते रहे। और ये जो दुख का जो पीरियड था उसको राहत कहा गया है। तीसरा पीरियड जब शुरू हुआ तो ये पीरियड त्रेता युग का था। त्रेता युग के अंदर इसी तरह का एक दैत्य पैदा हुआ। उस दैत्य का नाम था बल, राजा बल। बल कहते हैं स्ट्रॉन्ग को, जो ताकत वाला होता है। वो छोटे मोटे सबको मारता रहता था, बहुत दुख देता था। हो सकता है कि ये इंसान के रूप में, क्योंकि सामने इमाम का जो अपीयरेंस जो था तो वो वामन था। और वामन कहते हैं वो मिसिंग लिंक के जिसको आज साइंटिस्ट ढूंढ नहीं सके बिटवीन चिंपांजी एंड मैन। उसका नाम पीरों ने वामन रखा। इंग्लिश में वामन कहते हैं ड्वार्फ को, जो छोटे कद का होवे, बहुत छोटा था। जैसा कि आप समझ लो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने ये गोलायत था, वो कितना बड़ा था, बहुत बड़े साइज का था। आज डॉक्टर शिराज ने उसकी हमको फिल्म वो स्लाइड भी बताई। तो ये जो ड्वार्फ थे और वो तो बहुत बड़ा ताकत वाला ऊंचा था।
रसूल अकरम की हदीसों में से हमें कुरान शरीफ की बाज चीजों का पता लगता है जो कुरान में नहीं, यानी कुरान की चीज है, एक्सप्लेनेशन हदीस में है। अल्लाह ताला फरमाया आद और समूद और उनकी दूसरे पहले लोगों की हालतों का जिक्र कर इनको, यानी स्टोरी सुना। रसूल को कहा कि तुमने कभी उनको देखा ही नहीं कि वो कितने ऊंचे और कितने बहादुर थे। तो रसूल अकरम को पूछा गया तो रसूल फरमाया कि उस जमाने के अंदर उनका कद जो था, हाइट जो थी 40 यार्ड की थी, 120 फीट। आज हम इमेजिन कर सकते हैं कि 120 फीट का आदमी या कोई जानवर होगा, हो सकता है। तो उस जमाने के अंदर ये जो बर्ड राजा था वो गरीबों कमजोरों को बहुत दुख देता था और वामन अवतार लेके, जिसको हम एप भी कहते हैं, और सच पूछो तो वो फर्स्ट ह्यूमन रेस का सरदार था, उसने बर्ड को मारा और उस जमाने के जो जीव थे उनको सुख शांति देके उनकी दुखों की रात पसार कर दी और दिन उगा दिया। छठी दफा यानी विजय त्रेता युग के अंदर सेकंड टाइम, मगर टोटल 6th टाइम फिर इसी तरह का एक दैत्य पैदा हुआ, खुदा का दुश्मन लोगों को सताने वाला हुआ, और उस आदमी का नाम उसको कहते हैं हम लोग जरासिंह। उसको हमारे गिनानों के 10 अवतार के हिसाब से कहा गया जरासिंह। जरासिंह एक ऐसा जानवर था कि जिसके 1000 टेंटेकल्स थे, 1000 हाथ होंगे, पांव होंगे। आप देख लो, एक स्पाइडर है या एक बिच्छू है जिसको हम इंग्लिश में स्कॉर्पियन कहते हैं, तो उस जमाने में हो सकता है कोई ऐसा जानवर हो कि जिसके 1000 टेंटेकल्स थे। ये जो जरासिंह था यह भी बड़ा दुख देने वाला था। जैसे जैसे जमाना बदल गया, जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, जैसे जैसे जीव बढ़ते गए, तैसे तैसे दुख भी बढ़ते गए और राहत घटती गई, पाप बढ़ता गया, मजहब घटता गया, सवाब घटते गए, गुनाह बढ़ते गए। तो इसको फिर मौला ने अपना एक स्वरूप लिया, खुदा का नूर जाहिर हुआ और इसका नाम था फरसी राम। फरसी कहते हैं एक्स को। ये वो केव मैन होना चाहिए कि जिसने सबसे पहले फ्लिंट यूज किया। इसने एक फरसी बनाई और उसके टेंटेकल्स जो थे इससे काट काट के उस दैत्य का नाश किया, जीवों को सुख दिया, दुखों की रात दूर हो गई और सुखों की सुबह शुरू हो गई। इस वक्त 7th टाइम, लेकिन विजय त्रेता युग में 3rd टाइम एक ऐसा और दैत्य पैदा हुआ कि जो और भी ज्यादा ताकत वाला और बहादुर था, और इसका नाम था रावण। रावण कहते हैं प्राउड को, क्रूअल को। ये इसका लिटरेरी मीनिंग है रावण का, क्रूअल एंड प्राउड। इसके सामने राम ने अपनी अपीयरेंस की, और राम का मतलब होता है अदल करने वाला, जस्ट या सिंसियर, कि जो सच्चा होवे, अपने कौल के ऊपर खड़ा रहे। इसका राम का लिटरेरी मतलब ये है। मैंने आपके सामने तमाम दैत्यों और अवतारों का लिटरेरी मतलब भी कर दिया है। तो राम ने रावण का नाश किया, दुखों की रात दूर हो गई, सुखों की सुबह शुरू हो गई। इस विजय त्रेता युग के अंदर बर्ड्स, फ्लाइंग क्रिएचर्स वगैरह, जिसको हमारे पीरों ने 56 करोड़ी मेघमाड़ा कहा। ये जो मेघमाड़ा थे इनको बर्ड्स और फ्लाइंग क्रिएचर्स के साथ रखा। इनकी 560 मिलियन स्पेसीज हुई उस जमाने के अंदर, और अभी टोटल एरिया जो दुनिया का था वो इतना नहीं था कि जितना आज है, उस वक्त कमती था। और ये सिल्वर एज कही गई, ऊपर की गोल्ड एज थी, ये सिल्वर एज थी कि जिसके अंदर 25% सिन थे, गुनाह होते थे, 75% इबादत और नेकियां होती थी। तो ये 2 युगों को टोटल हुआ 30,14,000 बरस, 3,14,000 ईयर्स। अभी त्रिजय द्वापर युग में इसी तरह से एक दैत्य पैदा हुआ, उसका नाम था कंस। कंस
यानी उसको इंग्लिश में कंसा कहा गया, ये एन है, और कंस कहते हैं कुश में से ये चीज निकली, मारने वाला, किलर। और ये कंस ऐसा था कि उसने अपनी सगी बहन के 7 बच्चों को मार डाला, बड़ा जालिम था। तो इसके सामने खुदा का नूर कृष्ण के अंदर जाहिर हुआ, और कृष्ण कहते हैं डिप्लोमेट को। वर्ड कृष्ण का मतलब है चालाक, होशियार, डिप्लोमेट। कृष्ण का एक और मतलब भी है, और वो है करसन, यानी टिंटेड, उसका रंग जो था डार्क था। तो कृष्ण ने कंस का नाश किया, और ये 8वीं दफा दुनिया के अंदर रात का पीरियड खत्म होके वापस दिन सुखों का उगा। इस त्रीजे द्वापर युग के अंदर कॉपर एज कही पीरों ने इसको, और इस कॉपर एज के अंदर 50% गुनाह होते थे, 50% नेक काम होते थे। और इस जमाने के अंदर 32 करोड़ किन्नर हुए, 320 मिलियन स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, लाइफ ऑन ग्राउंड प्रोमिनेंट। उस पहले जमानों के अंदर जमीन पानी के अंदर लाइफ ज्यादा थी, दूसरे जमाने के अंदर हवा के अंदर ज्यादा लाइफ थी, प्रोमिनेंट थी, तीसरे टाइम के अंदर जमीन के ऊपर लाइफ प्रोमिनेंट हो गई। और ये वो वक्त था दीनदारों कि जब जमीन के अंदर फड़फड़ादी वेजिटेशन वगैरह हिसाब बिगड़ की हुई। और देखो पीरों ने एक और हमको कमाल की बात कही है, और वो ये है कि 3 बिलियन, या ऐसा कहूं 3039,132,000 वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन हुई। अभी तक साइंटिस्टों ने ये फिगर हमको नहीं बताई। इसको हमारे पीरों के गिनानों में आधार भार वनस्पति जो कहा, तो आधार भार वनस्पति मीन्स 339,132,000 वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन। चौथे कल युग के अंदर, द्वितीय त्रेता युग के अंदर 9th टाइम एक ऐसा दैत्य जिसका नाम था धृष्ट दुर्योधन। ये दुर्योधन कहते हैं लिटरेरी मीनिंग में विकेट, बदमाश, लुच्चा, क्रूअल। इसके सामने श्री बुद्ध अवतार, जिनको बुद्ध कहते हैं वाइज, को कृष्ण के टाइम में हुआ, लेकिन मरा ये बुद्ध के टाइम में, पांडवों ने इनको मारा, तो दुर्योधन का नाश किया। चौथे कलयुग के अंदर दैत्य कालिंगा है। कालिंगा कहते हैं चीटर को, जो दगा फरेब करे उसको कालिंगा कहते हैं। कालिंगा का लिटरेरी मीनिंग है चीटर, चोर, सिनर। और इसके सामने अली है। अली का मतलब हाई, ऊंचा, महान। तो ये जो चौथे युग के अंदर ये जो दैत्य कालिंगा है दिनदारे, वो अभी तक जाहिर नहीं हुआ। ये 10वां नकलंकी अवतार, निष्कलंकी कहते हैं, कि जिसमें कोई ऐब न होवे। ये सुबहानहू ताला की सिफत है, अल्लाह का वो नूर कि जो तमाम जमाने के अंदर उतरता चला आया, अपीयर होता रहा, वो अली के अंदर अपीयर हुआ। और इस जमाने के अंदर कलयुग बैठा, उसको अभी तक लगभग 7000 बरस हो गए हैं। ये 7000 बरस के अंदर 36 करोड़ मोमन हुए, उनमें से 12 करोड़ मोमन पास हो गए, जो पीर सदरुद्दीन की नूर के साथ लगे। और ये जो वक्त है, ये 75%, 75,000, 7000 बरस पीर सदरुद्दीन तक, उसमें 75% गुनाह रहे, 25% नेकियां इबादत रही। लेकिन पीर सदरुद्दीन के बाद अब जो टाइम हम पसार कर रहे हैं, जिसको हम आज फड़सार वेला कहते हैं, इसके अंदर 97.5% गुनाह है और 2.5% नेकियां हैं, जो टाइम अभी हम पसार कर रहे हैं। इसलिए हमको एक्सचेंज रेट बढ़ गया हमारा, इतने बहुत। जब इन्फ्लेशन आ गई तो एक्सचेंज रेट बढ़ गया, 1 करो तो 1.25 लाख का सवाब मिलता है।
तो दीनदारो, इस जमाने के अंदर जिसमें से आज हम पसार हो रहे हैं, दैत कालिंगा के साथ लड़ेगा। अभी ये जो वक्त हम पसार कर रहे हैं ये रात का वक्त है, क्योंकि दुख गुनाह बहुत है, लोगों के अंदर बेचैनी बहुत है, लोग दुखी हैं, फैमिली का स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है और दिन ब दिन दुख बढ़ते जाएंगे। मैं गए 5-6 साल से सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ गया हूँ, मैंने 79 से 6 बरस हुए मैंने ये चीज एडॉप्ट की कि जमाने के अंदर जहाँ भी घूमूं मैं वाजें करता रहता हूँ, और उन वाजों के अंदर मैंने कहा है पीरों के गिनानों, इमाम के फरमानों और मुलाकातों में से जो कुछ भी मुझे मिला, मैंने जमात को अर्ज की कि दिन ब दिन गुनाह बढ़ेंगे, नेकियां घटेंगी, तो क्या होगा? दुख बढ़ेंगे, तकलीफें बढ़ेंगी, व्याधि चिंता बढ़ेगी, नर्वस टेंशन बढ़ेगी, मन में शांति नहीं रहेगी, ये दिन ब दिन बढ़ते रहेंगे। रात सख्त हो रही है और 125 बरस ऐसे ही निकलेंगे, और 130 ईयर्स अभी तक हमको पसार करने हैं। मौला अली जब वो दैत कालिंगा को मारेगा उसमें अभी तक 125 बरस से ज्यादा हैं। दुनिया और भी खराब होगी। हजरत इमाम का एक फरमान याद करो, ये फरमान साहब ने दारुल सलाम में भी किया। 68 में मौला जब आए इमाम बन के, सेकंड मुलाकात के अंदर साहब ने बच्चों को कहा कि तुम्हारे बाप दादाओं को दुनिया के अंदर जो तकलीफें दुख पड़े उससे ज्यादा तुमको दुख पड़ेंगे। फरमाना ये, मौला फरमाया मैं ये नहीं कहता कि दुखों के सिवा तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें आराम के थोड़े से साइकिल्स और राहत के सामान मिलेंगे, लेकिन दुख बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये रात का जमाना है, गुनाहों की जिंदगी है। 2.5% ही इबादत है, 97.5% गुनाह है। इसके सामने प्रोपोर्शन भी दुखों का ज्यादा है, गुनाहों का ज्यादा है। दैत कालिंगा की फोर्सें बढ़ती जाएंगी। दैत कालिंगा के ऊपर मेरी बहुत सी वाज़ें हैं। ये दैत कालिंगा बहुत चैन चाड़े करेगा, लोगों को बहलाए फुसलाएगा, और उसके लिए पीरों ने तो बहुत कुछ कहा। दैत कालिंगा के ऊपर वाइज नहीं हो सकती आज, मगर थोड़ा सा आपको कहूं कि ये दैत कालिंगा कौन है। जैसे कि खुदा ताला एक पर्सन के अंदर खुद को लिमिट नहीं कर लेता, वो अपने नूर की ताकत एक पर्सोनिफाइड शक्ल के अंदर जाहिर करता है। इसी तरह से ये दैत कालिंगा की भी फोर्स है, वो किसी हालत में जाहिर होती है। कम्युनिज्म जो है ये दैत कालिंगा है, कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म दैत कालिंगा के हाथ में कोई छुरी, चाकू, तलवार, भाला, रिवॉल्वर, बंदूक तो चाहिए ना। वो जो हथियार वेपन है उसका, वो साइंस है। साइंस बढ़ती जाएगी, साइंस बढ़ने से हमारा ईमान बिगड़ जाएगा। जब किसी आदमी के हाथ में सामने गुस्से में होवे और उसके हाथ में तलवार, छुरी, चाकू या रिवॉल्वर होवे तो हम कैसे डर जाते हैं। इसी तरह से ये जो साइंस है, जो दैत कालिंगा का हथियार है, इसके सामने हमारा ईमान डर जाता है, हम बेचैन हो जाते हैं, साइंस की तरफ चले जाते हैं, साइंस को सच्चा मानते हैं। यही तो निशानी है उसकी, दैत कालिंगा की। आज दुनिया में जो कम्युनिज्म है वो कमजोर है, मगर हमको पीरों ने कहा है कि ये दिन ब दिन पावरफुल हो जाएगा और सारी दुनिया के कम्युनिज्म का सेंटर चाइना बनेगा। भले आज रशिया है और चाइनीज ने कम्युनिज्म रशिया से सीखा, लेकिन दिन में आप देखोगे इंशाल्लाह नेक्स्ट 25, 30, 40, 50 इयर्स में दिन ब दिन चाइना की ताकत बढ़ती जाएगी। ये चीज हमको 900 बरस पहले पीर शमस ने कही कि जब दुनिया के अंदर किसी को इस बात का इल्म नहीं था, मगर हमारे पीरों ने 1000 बरस पहले ये चीज को देख लिया। चाइना बढ़ता जाएगा। देखो पीरों ने कहा है कि चाइना के 40 लाख दुनिया में एजेंट होंगे कि जो दुनिया के अंदर लोगों का दिल खराब करेंगे, यानी ईमान से हटाएंगे। है जी 40 लाख दैत कालिंगा नाचेला जी, 40 लाख यानी 4 मिलियन ते अवरनु जीवा डोलावे जी, लोगों का दिल हिलाएगा, शंका में डाल देगा।
मन स्थिर नहीं रहेगा। ये 40 लाख चेले, ये चेले कौन? साइंटिस्ट। दुनिया में 40 लाख साइंटिस्ट नवी नवी रमत करेंगे, नवी नवी डिस्कवरी करेंगे। दुनिया में 40 लाख साइंटिस्ट नवी नवी रमत करेंगे, नवी नवी डिस्कवरी करेंगे और लोगों को मजहब से हटा देंगे। जमात खाना छोड़ दिया टेलीविजन की वजह से, छोड़ दिया ना, बैठे रहते हैं उधर। बच्चों की इमेज खराब हो गया, कैरेक्टर खराब हो गया टेलीविजन की वजह से। ये खाली छोटी सी मिसाल देता, ऐसी तो बहुत सी मिसालें हैं। और कैसी कैसी वो चीजें पैदा करेगा। फरमाया है कि ये जो गारा है ना, गारा, गारा कहते हैं मड को, मड में से खंड बनाएगा, गुड़ बनाएगा। आज जो आप सेक्रीन खाते हैं ये टार में से निकलती है। टार जो है ये मड है, काले रंग का टार, उसमें से सफेद रंग की एक थोड़ा टार मुंह पे रखो तो कितना कड़वा लगे पता, लेकिन यही सेक्रीन हम खाते हैं, वो मीठी होती है। जी गारो मंत्री ने दैत गोड़ बनाव से जी, तिया गोड़ ना परब चलाव से जी। परब मीन्स हिसाब बिगड़ की इसकी सप्लाई होगी, आपको जितनी चाहिए सेक्री मिलती है जी। पानी मंत्री ने दैत गरत बनाव से जी, तिया गरत ना परब चलाव से जी। पानी को ऐसा बना देगा कि वो घी मिलेगा। और वेजिटेबल घी खाते हैं, वो कहाँ से आता है? कोई गाय के पेट से नहीं निकलता। यही अलग अलग किस्म के पानी इकट्ठे करके उसमें से उसको घी बनाता है। यहाँ पानी का मतलब जूसेस। तो इस तरह से ये सारे गिनान के अंदर बहुत कुछ का है। मरे हुए माँ बाप को दिखाएगा, दैत कालिंगा मरे हुए माँ बाप को दिखाएगा। पीर शम्मस ने 900 बरस पहले जब जमात को ये सुनाया तो वो लोग हैरान हो गए। आज कुछ हैरानी की बात है? मेरा बाप गुजर गया, 25 बरस हुए, आज मैं उसकी वो फिल्म लगाता हूँ पर्दे के ऊपर, तो हमारे अब्बा घूमते हैं, फिरते हैं, हंसते हैं, मरे हुए माँ बाप को देखता हूँ। कागज लेके तो पीर ने फरमाया कि कागज मंत्री ने दैत पोपट पढ़ा उसे। कागज को इस तरह से बुलाएगा कि जैसे पोपट बोलता है, पैरेट बोलता है। ये रिकॉर्ड, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, ये टेप रिकॉर्डिंग, ये कागज की तरह ही है ना। तो ऐसी ये सारी साइंस का हथियार कम्युनिज्म यूज करेगा। एक जमाना आएगा दीनदारों, रशिया भी गिर जाएगा, अमेरिका भी गिर जाएगा, दुनिया में एक ही वर्ल्ड पावर होगी और दैट विल बी चाइना। ये वर्ल्ड पावर का आज से 125-30 ईयर्स के बाद जो कोई भी प्रेसिडेंट या प्रेसिडियम का चेयरमैन उधर चाइना में बैठा होगा वो मगरूर हो जाएगा, मगरूर हो जाएगा, प्राउड हो जाएगा, दुनिया को नाच नचाएगा। सारी दुनिया उससे कांपेगी और सारी दुनिया के अंदर कम्युनिज्म फैल जाएगा। बहुत थोड़ी पॉकेट्स बचेंगी दुनिया में कि जहां कम्युनिज्म नहीं आएगा, और उसकी साइड के अंदर बहुत कुछ सस्ता मिलेगा, बहुत कुछ लोग ज्यादा उसकी तरफ जाएंगे, आसानियां मिलेंगी, राहतें मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, बड़ाइयां मिलेंगी, ओहदे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा और दुनिया में भगत दिन ब दिन घटते जाएंगे, घटते जाएंगे। कोई नवाई की बात नहीं कि 20 मिलियन में से आज हम 15 मिलियन रह गए हैं, गए लगभग 50 बरस में। इस्माइली घट रहे हैं और भी घटेंगे, इस्माइली घट जाएंगे, पॉपुलेशन में घट जाएंगे। बहुत से इस्माइली हैं वो मजहब छोड़ देंगे, कोई किसी मौलवी की वजह से, कोई नमाज की वजह से, कोई मस्जिद की वजह से छोड़ दिए। पाकिस्तान के अंदर करीमाबाद के अंदर इस्माइलियों ने 4-5 हजार इस्माइलियों ने अपना मजहब छोड़ दिया, मस्जिद में जाके सुन्नी हो गए। और बहुत से ऐसे सुन्नी हैं कि जो वो कम्युनिस्ट हो गए। आज ये ईरान और इराक के अंदर कितने कम्युनिस्ट हैं वो शायद सबको पता ना होगा। तो दुनिया के अंदर मजहब की उछल पाथल हो जाएगी, दुनिया के अंदर मजहब घट जाएगा। इमाम के आजू बाजू में बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे। ऐसा वक्त आएगा कि पीर शम्स कहते हैं 12 कोस पे एक बत्ती जलेगी,
कोस कहते हैं 2 माइल को। आज तो हम देखते हैं एक रूम में देखो कितनी बत्तियां हैं, और बाहर निकलो तो 1 माइल के अंदर 40 बत्तियां लगती हैं रास्ते के अंदर। और तीसमस कहते हैं कि 24 माइल पे 1 बत्ती चलेगी। ये बत्ती ईमान की बत्ती। दुनिया के अंदर 24 माइल के रेडियस के अंदर एक मोमन नजर आएगा कि जिसके दिल के अंदर ईमान के मोहब्बत और नूर की बत्ती जलेगी। इतना दुनिया के अंदर दुख बढ़ जाएगा, रात दुखों से भर जाएगी, और आखिर फिर मौला उठ के अपनी रूहानी ताकत से फोर्सेस ऑफ नेचर काम करेंगी और दैंत कालिंगा को मारेंगी। उस वक्त दुनिया की वस्ती 15-16 बिलियन हो जाएगी, 15-16 बिलियन। और जब शांति होगी तो 30-40 करोड़ आदमी बचे होंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। दुनिया की बड़ी बड़ी तमाम सिटीज बर्बाद हो जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, मोटरें नहीं रहेंगी, ट्रेनें नहीं रहेंगी, एरोप्लेन नहीं रहेंगे, और हमको गामड़े की जिंदगी वापस शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन सुख शांति होगी, मोहब्बत होगी, कोई क्राइम नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, सुख की नींद सोएंगे, खुदा को याद करेंगे, रात दुखों की खत्म हो जाएगी और सुखों की सुबह शुरू हो जाएगी। और इस पीरियड को जो सुखों का पीरियड होगा, फिर कहते हैं कि 125,000 ईयर्स तक लंबा होगा। और ये सुखों का पीरियड 1.25 लाख वर्ष रिखियों राज करे, पक्षी महादिन मंडाए। उसके बाद ये जो धरती है, ये जो अर्थ है, बर्बाद हो जाएगी। 125,000 ईयर्स का सुख शांति का पीरियड निकलेगा, और उस पीरियड के अंदर कोई गुनाह नहीं होगा। तो जब ये रात खत्म हो जाएगी, दिन उगेगा, इसी को सुबह कही गई। अब मैं आपको कुरान शरीफ के अंदर से ये 10 अवतार की बात बताऊं। जो इमाम ने फरमाया ना, कुरान के अंदर 10 अवतार की बातें हैं। मैंने आपको बताया दीनदारों कि दुखों का जो पीरियड है हम उसको रात कहते हैं और सुख को फजर कहते हैं। सूरतुल फजर कुरान शरीफ के अंदर एक सूरा है। अल्लाह फरमाता है कि वल फजर, मैं सुबह की कसम खाता हूँ। कसम किसकी होती है? जो चीज हमें प्यारी होती है। सुख शांति के पीरियड को खुदा प्यार करता है, इसके लिए खुदा ने कसम खाई, वल फजर वल लियालिन अश्रिन, 10 रातों की कसम। पहले सुबह की कसम खाई, फिर 10 रातों की कसम खाई। वशिफे वल वस्र, और इवन और ऑड की कसम खाई। वल्लैल इज़ा यस्र, हल फी ज़ालिका क़स्मुन लिज़ी हिज्रिन, एंड द नाइट, बाय द डॉन, खुदा ने सुबह की कसम खाई। एंड द 10 नाइट्स, मैंने आपको 10 नाइट समझाई, उन 10 रातों की कसम। एंड द इवन एंड द ऑड, ये इवन और ऑड क्या? ये 10 अवतार और 10 दैत, ये इवन एंड ऑड। एंड द नाइट व्हेन इट मूव्स ऑन टू इट्स एंड, इस रात की कसम के जो खत्म होने वाली है, 125 वर्ष के बाद आज से खत्म हो जाएगी। Is there not in it a strong evidence for a man of understanding? खुदा कहता है, क्या तुम्हारे लिए समझने के लिए ये प्रूफ काफी नहीं? खुदा कहता है, Is there not in it a strong evidence for a man of understanding? ये वो है 10 अवतार की बातें कि जिसकी तरफ इमाम ज़मान ने इशारा किया कि 10 अवतार को इस्लामिक प्रिंसिपल से समझाओ। मैं अपना ये लेक्चर खत्म करूं, आपके सामने कुछ पढ़ना चाहता हूं। मेरी एक बुक इंशाअल्लाह थोड़े टाइम में बाहर आएगी। उस बुक का नाम होगा इस्माइली तरीका, हमारे मजहब के प्रिंसिपल्स, इस्माइली मजहब की नजर से।
بعض ہمارے آدمی یہ کہتے ہیں تصوفدار تو ہم کو ہمارے پیروں نے ہندوؤں میں سے اسماعیلی بنانے کے لیے کہے. بھائی ہندوستان میں پیر کبھی گئے؟ سب سے پہلے جو ہندوستان میں پیر گئے ان کا نام تھا پیر صدگر نور، اور وہ امام سری مستنصر باللہ فرسٹ کے زمانے میں گئے. امام مستنصر باللہ ہمارے 18th امام تھے. تو امام مستنصر باللہ کے پتا کا نام کیا؟ مولانا ظاہر. مولانا ظاہر کے پتا کا نام کیا؟ مولانا حاکم. یعنی امام مستنصر باللہ نے ہندوستان میں پیر بھیجے. اس کے پہلے یعنی امام مستنصر باللہ کے دادے امام حاکم علیہ السلام نے پبلک کے اندر یہ بات کہی. دیکھو دیندارو، میں فوٹو اسٹیٹ کاپی کر کے لایا ہوں. اس کتاب کا نام ہے دی ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر. مشہور کتاب ہے. اس کی 7 والیومز ہیں اور یہ 6th والیوم ہے. اس کے اندر لکھا ہوا امام حاکم کی بابت میں، جو کہ اس آدمی نے امام حاکم کو بہت اچھی طرح سے ڈپکٹ نہیں کیا. تو فرمایا ہے کہ ہی ایسپائرڈ ابو دی فیم آف اے پروفٹ. یعنی یہ کہتا ہے کہ امام حاکم نے ہمیشہ اپنے آپ کو پیغمبروں سے بھی اونچا سمجھا، اور وہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں. اینڈ اسٹائلڈ ہمسیلف دی ویزیبل امیج آف دی موسٹ ہائی گاڈ، اور اپنے آپ کو انسانی روپ کے اندر فزیکل امیج میں خدا کا نور بتایا. سچ بات ہے، اس میں کوئی جھوٹ بات نہیں تھی. ہو آفٹر تک واپس کہتا ہوں کہ مولانا حاکم کہتے ہیں، یعنی یہ آدمی لکھتا ہے کہ ہو آفٹر 9 apparitions on earth was at length manifest in his royal person. خدا کا نور اس کے اندر 10ویں دفعہ ظاہر ہوا، یعنی امام حاکم کے اندر. اور امام حاکم سے پہلے 9 دفعہ خدا کا نور ظاہر ہوا انسان کے اندر. تو 10 اوتار کی بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ کوئی ہندوؤں کی بات تو نہیں. اس زمانے میں امام حاکم کے زمانے کے اندر ہمارے باپ داداؤں کے اندر سے کوئی اسماعیلی تھا ہی نہیں، کیونکہ سب سے پہلا جو پیر ہندوستان میں آئے وہ تو امام مستنصر باللہ کے زمانے میں پیر صدگر نور آئے. یہ تو اس کے پہلے کی بات ہے. اور وہ یہ بات کدھر کی ہے؟ کیرو کی ہے. ہاں ایک بھی ہندو نہیں تھا، نہ کوئی بھگوان داس تھا، نہ مول چند تھا. اور یہ امام حاکم کے فرمان کے لیے ہے کہ امام حاکم نے خود کو کہا کہ میں 10ویں دفعہ اس دنیا کے اندر خدا کا نور ظاہر ہوا ہوں. میں نے آپ کے سامنے بہت کچھ کہا، اور اگر اجازت ملے اور ہمارے اکبر بھائی جو آج کے ماسٹر آف سیریمنیز ہیں، معلوم نہیں باہر چائے رکھی کہ نہیں رکھی، مگر میں کہتا ہوں کہ جو اکبر بھائی منظور کریں تو میں 3 کوشچن فلور میں سے جواب دینے کو تیار ہوں، جو یہ قبول کرتے ہوں گے. تو اکبر بھائی آئیے ادھر. اوکے، انہوں نے قبول کیا ہے. 3 کوشچن. اچھا، انہوں نے کہا 5 کوشچن تک. پلیز کم ہیئر. اس میں ریکارڈ ہو گا. There was a mention of the Das Avatar in one of our Bangi Inans. Why has this mention been removed now? I see. Thank you very much. بندگی کے گنانوں کے اندر گنان میں اس نے کہا کہ 10 اوتار کا نام کیوں نکالا گیا. حقیقت یہ ہے کہ ہم جو پہلے پڑھا کرتے تھے بندگی کے گنان کے اندر وہ پاٹھ برابر نہیں تھا، لیکن جو آج ہم وہ پاٹھ پڑھتے ہیں، خط درشن کی ویل میں سے 72 نمبر کا پاٹھ ہے، اور وہ پاٹھ اس طرح سے ہے:
જી દર્શન છે એ જાગતા અને શોધી લિયો ગુણવંત આજકલ 10 માહે સ્વામી આવ્યા અને वरदेवा अनंत। इसमें सब तो निकाला नहीं गया, पढ़ा जाता है। अवतार का लफ्ज इसमें नहीं है, अवतार का लफ्ज नहीं है, मगर ये ज्ञान का असल बात है। बहुत दफा ऐसा ना, हमारे बहुत प्यार करने वाले भगत होते हैं, आपको मालूम है बाज आदमी ऐसे होते हैं कि दूर से ही प्यार करते हैं, कोई गले लपट जाते हैं, कोई किस वगैरह करते हैं, कोई भींच के उसको दुख हो जावे इतना पहुंचा देते हैं। तो हमारे बहुत से ऐसे भगत हैं, हर बात के अंदर शाह करीम शाह करीम शाह कर दिया, मौला कह दिया, श्री सलाम शाह का नाम निकाल के करीम शाह कर दिया, और गिनान पे पढ़ते पढ़ते हमको मालूम ही नहीं। अच्छा जी संजावेला तमे मत कोई चूको मौलाए छे गुरनी एंधानी। मौला को कहते हैं ये गुड़ की एंधानी है कि तू शाम को आके दुआ पढ़। तो इस तरह से हम लोग बहुत से गिनानों के अंदर हेर फेर कर देते हैं, नहीं होना चाहिए। पीरों ने जो चीज कही वो एग्जैक्टली रखनी चाहिए। According to us, Hazrat Ali was the first Zahir Imam. Before that, all the Imams were in Batin. So this now avatar, were they in the रूप of Imam or were they in the रूप of Prophet or what रूप they were? अच्छा, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। टाइम की वजह से मैंने इसको जरा शॉर्ट किया। हमारे जितने भी ये 10 अवतार थे वो इमामत का नूर था। इन 10 अवतारों के बीच में जो लिंक है, यानी इनकी औलाद जो हुई, उसका नाम है विष्णुपुरी। इस सदरुद्दीन की बनाई हुई, यानी कृष्ण के बाप का नाम क्या था, लड़के का नाम क्या था। तो ये जो विष्णुपुरी के अंदर सितोत्र पात्र हैं, तो वो एग्जैक्टली बाप बेटे नहीं है, क्योंकि फिर सदरुद्दीन ने क्या किया है, वहां तो पता नहीं कितनी सैकड़ों पेड़ियां निकल गई, मगर मशहूर एक एक पेड़ी ले ली। जैसे हजरत रसूल अकरम की जो पेड़ियां हैं, अल्लामा सुहेली नाम के एक थियोलॉजियन हुए, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह से लेके अदनान तक 40 पेड़ियां हैं। 40 पेड़ियां भी मिलती नहीं। फिर उसने ये भी लिखा है कि अदनान से लेके हजरत इब्राहिम तक 40 पेड़ियां हैं, यानी 40 जनरेशन हैं। तो पीर ने ये जो वंशावली लिखी है, जिसको हम विष्णुपुरी कहते हैं, इसके कंप्लीट विष्णुपुरी, जूनी जो दुआ थी हमारी घटपाट की, उसके अंदर कंप्लीट विष्णुपुरी है। तो उसके अंदर ये है कि ये अली अलैहिस्सलाम की एक ही फैमिली चली आती है, और ये सब के सब इमाम का नूर थे। अब मोहम्मद का नूर हर जमाने के अंदर रहा। तो पहले सतयुग के अंदर, सारे जमाने के अंदर गुरु ब्रह्मा थे, यानी गुरु ब्रह्मा कोई 17 लाख बरस जीते नहीं रहे, मगर गुरु ब्रह्मा की जो औलाद थी, ब्रह्मा 1, ब्रह्मा 2, ब्रह्मा 3, इस तरह से भी चले आए। तो चौथे पहले सतयुग के अंदर गुरु ब्रह्मा थे, विजय त्रेता युग के अंदर गुरु वशिष्ठ जी थे, तीसरे द्वापर युग के अंदर गुरु व्यास जी थे, और कलयुग के अंदर गुरु नबी मोहम्मद हैं। अभी नबी मोहम्मद का जब हम जिक्र करते हैं, व्यास जी और वशिष्ठ जी और गुरु ब्रह्मा, तो आज नबी मोहम्मद को फिजिकली इस दुनिया से गए हुए 1400 साल हुए, लेकिन हमारे जो पीर है वो गुरु ब्रह्मा की, नबी मोहम्मद मुस्तफा की नूरानी हालत है। अली का नूर इमाम है और मोहम्मद का नूर पीर है। तो हमारे अंदर शाह और पीर की जो हमारी कॉन्सेप्ट है वो ये है। तो हमारे अली अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी थे पात्र, वो सब इमाम का नूर थे। यस,
From what you mentioned, it seems to me that without mentioning Darwin's theory of evolution, your views very much agree with this theory. But I am at pains to say that does it not conflict with our traditional view that we come from Adam and Bibi Hawa, and because of their nafrmani, he was thrown out into the world, and we are descendants of Adam and सवाल तो आप समझ गए। इस भाईजान का कहना यह है कि भाई एवोल्यूशन की तुमने बात की, मगर हमको तो ये कहा गया कि हम आदम की औलाद से हैं। मैंने अपने इस लेक्चर में कहा कि जो फर्स्ट एमीबा था वो आदम था, और हवा की जो स्टोरी है, आदम और हवा की स्टोरी, उसके अंदर बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आमतौर के ऊपर सब लोग मिस्टीरियस चीजों को समझ नहीं सकते, तो नॉर्मली हम कबूल कर लेते हैं। जैसे कि आज ही मैंने एक दफा ये जिक्र किया कि मैं एक दफा राजकोट में वाज करने के लिए गया। सिंप्लिसिटी इंसान के माइंड के अंदर जो होती है वो मिस्ट्री को नहीं समझ सकती। तो मैं वाज करके बैठा, दूसरी दुआ का टाइम हुआ। मुखी साहब ने एक भगत साहब को कहा, भगत साहब दुआ पढ़ो। भगत साहब फौरन उठे, आके मुखी साहब के पास बैठ गए। दुआ पढ़ो, अल्लाह मेरे आइकमान थे। उस जमाने में हम ऐसा बोलते थे ना, अतनाम पीर शाह पीर शाह पीर शाह पीर शाह, एक तस्वीर पीर शाह की निकाली। हम समझे अभी दुआ शुरू करेंगे, अभी दुआ शुरू करेंगे। जब एक तस्वीर पूरी हो गई, शाह तो दरगाह में कबूल का नूर मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह हज़ार इमाम हकनाम पीर शाह पीर शाह पीर शाह पीर शाह पीर शाह, 12 तस्बीहें पीर शाह की निकाली। शाह जो दीदार दे के आके बैठ गए। जमात हैरान। मुखी मुझे पूछते हैं, मिस्टर साहब देखा? मैंने कहा क्या देखा? बिल्कुल फरमान बरदारी है। कहते क्या ये दुआ है? मैंने कहा हाँ, इमाम सुल्तान शाह का फरमान है। अगर दुआ नहीं आती तो 12 तस्बीहें पीर शाह की निकालो। इस भगत साहब ने जब ही मुखी का फरमान सुना, तो मुखी का फरमान है वो शापीर का फरमान है। उसने ना नहीं किया, उसने नहीं कहा मेरे को दुआ नहीं आती, क्योंकि इमाम ने फरमाया दुआ नहीं आती तो 12 तस्बीहें निकालो। उसने जमात पे दुआ पढ़ाई, भले टाइम आधा घंटा निकल गया कोई बात नहीं, मगर दुआ पढ़ाई। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन आज मैं टाइम नहीं दे सकता। मैं आपको इतना जरूर बोलता हूँ कि जब हम हदीसें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो हमको ऐसा उसके अंदर कोई गुंथायला हुआ एक चीज मिलती है, पजल मिलता है कि जो आसानी से हल नहीं हो सकता। हमको ये कहा गया कि वो जन्नत में थे, तो जन्नत में से खुदा ने उनको जब नाफरमानी की जन्नत में, तो खुदा ने निकाल दिया, नीचे फेंका। तो हदीसों में है कि हजरत आदम सीलोन में उतरे, यानी यहाँ गिरे, और अम्मा हवा जिद्दा में गिरी। जिद्दा अरेबिया में है। तो भाई ये कैसे गिरे? आज हमको पता लगता है कि स्पेसशिप में से जब आके ये गिरते हैं तो वो एक कैप्सूल होता है, वो समुद्र में गिर जाता है और फिर जाके बोट उनको निकाल के ले आती है। तो हो सकता है कि हजरत आदम और अम्मा हवा कोई दूसरी दुनिया या प्लेनेट में से आए होने, और इनका कैप्सूल आदम का यहाँ गिर गया, अम्मा हवा का वहाँ जिद्दा में गिर गया। हदीस है। अभी कौन से आदम की बात करते हैं? जमीन के ऊपर तो एवोल्यूशन हुई, और ये आदम अलैहिस्सलाम और हवा आसमान से गिरते हैं। आज ये सब्जेक्ट में सॉरी ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन हम दुनिया के अंदर इवॉल्व हुए हैं। मगर जमीन की इस करोड़ों वर्षों की लाइफ में पीरों का हिसाब देखूं तो लगभग 8-10 बिलियन बरस से ज्यादा इस दुनिया को हो गए हैं। साइंटिस्ट कहते हैं 3-4 बिलियन हुए हैं। चलो साइंटिस्ट कहें, लेकिन पीरों का हिसाब बहुत लंबा है। इस अरसे के अंदर आप ख्याल करो, जब खुदा ताला फरमाया है, जो उसकी मिसाल हमको एक्सप्लेनेशन नबी ने दी कि वो 120 फीट के आदमी थे, तो वो भी कहाँ से आए थे ना। हमको इस बात के अंदर कुरान और हदीस पढ़ के ऐसा लगता है, जो कि गिनानों में स्पेस के इशारे हैं।
स्पेस के इशारे हैं। हो सकता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम किसी दूसरे प्लेनेट में से आए हों और यहाँ आके उन्होंने ड्वेलिंग की, उसमें से हम भी पैदा हुए। और उस जमाने के अंदर जब आदम अलैहिस्सलाम आए होंगे तो यहाँ जो ड्वार्फ और ये मिसिंग लिंक्स वगैरह है ये भी होती होगी, क्योंकि आज भी दुनिया के अंदर हम बाज जगहों के ऊपर देखते हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के आजू बाजू के अंदर ये जो आइलैंड्स हैं, फिजी आइलैंड्स हैं और दूसरे आइलैंड्स हैं, 2500 आइलैंड्स हैं, उसके अंदर बाज ऐसे लोग हैं कि कभी बैठा होवे तो बिल्कुल बंदर की जैसा लगता है। डोडोमा एरिया के अंदर जो आदमी हैं, बाज ऐसे लोग हैं। तंजानिया के अंदर के जो दूर से कोई जंगली गोरिल्ला जैसे लगते हैं, चिंपैंजी जैसे लगते हैं। तो दुनिया के अंदर आज इस किस्म के थोड़े से रेमेनेंट सैंपल्स रह गए हैं। हो सकता है कि ये आदम जिसको हम अबुल बशर कहते हैं, शायद वो किसी दूसरे प्लेनेट से आया होवे, लेकिन एवोल्यूशन की थियोरी सच्ची थियोरी है। इंशाल्लाह कभी मौका लगेगा मैं आदम और हवा की बात को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जी, चौथा क्वेश्चन, 5वां जिसको तैयार रहना है हो जाएगा। इधर आ, नहीं इसमें रिकॉर्ड करो प्लीज, इसमें से एक सिलेक्ट करो, नॉट टू। અમો મિશનરીઓ અને જમાતો તમારા ઇલ્મની બહુ જ કદર કરીએ છીએ, અને જ્યારે તમે કોઈ પણ ઇન્સાન અથવા તો કોઈ પણ માણસના ઇલ્મની કદર થતી હોય એ જ્યારે કોઈ વસ્તુ રજૂ કરે અને એવી રીતે તમે આજે અમુક વસ્તુઓ રજૂ કરી, એની અંદર મને એમ લાગે છે કે કદાચ ભવિષ્યની અંદર કોઈ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પેદા ન થાય એટલા માટે, ફક્ત એટલા માટે જ હું એક પ્રશ્ન તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું અને એ જમાતને જરૂર સમજાવજો. હું જ્યાં સુધી સમજ્યો છું અને ત્યાં સુધી કદાચ બનવા જોગ છે કે બીજાઓ પણ આ પ્રમાણે સમજ્યા હશે કદાચ, કે આપણે સાયન્સની અંદર પ્રોગ્રેસ કરવો એ જાણે કે એક શેતાન એટલે દૈત કાલિંગાના તરફ પ્રોગ્રેસ કરવો એવી જાતની કદાચ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય. હું ધારું છું ત્યાં સુધી આ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ દૂર કરવા માટે આપણને એ સમજાવો કે આપણને સાયન્ટિસ્ટ થવાની પણ જરૂર છે. જેમ ઇસ્માઇલી દરેક ફિલ્ડની અંદર આગળ વધે છે એ પ્રમાણે હું ધારું છું ત્યાં સુધી સાયન્સની અંદર પણ આગળ વધવું જોઈએ, અને સાયન્સ એ કોન્ટ્રાડિક્ટરી નથી પણ એક કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે એમ મારું માનવું છે. જો એમાં કઈ તમે ખુલાસો કરી શકો તો जरूर करो. सवाल तो बहुत अच्छा है, मगर मेरे सारे लेक्चर में थे स्टार्टिंग से थे। मैंने ये कहा कि कम्युनिज्म जो दैत कालिंगा है वो साइंस के हथियार को यूज करेगा। हमारे किचन के अंदर बहुत सी छुरियां हैं, तो मैं छुरियों से अपना गला नहीं काट रहा, मैं छुरियों से एप्पल काटता हूँ, फ्रूट काटता हूँ, यूज करता हूँ। मगर किसी आदमी, जुनूनी आदमी को चाहिए तो वो छुरी से आपघात भी कर सकता है, दूसरे को भी मार सकता है। मैंने साइंस का तो कोई विरोध न किया, मैंने ये कहा कि दैत कालिंगा साइंस का वेपन यूज करेगा, आप उसको अच्छे तरीके से यूज करो, साइंस के विरुद्ध की तो कोई बात नहीं की। और इधर हमारा मौला भी तो साइंस यूज करेगा, तो साइंस एक सेल्फ कुछ खराब नहीं। दैत कालिंगा कम्युनिज्म साइंस में बहुत तरक्की करेंगे और वो साइंस के हथियार को यूज करेगा। साइंस का हथियार अच्छे तरीके से भी यूज हो सकता है। इधर नॉर्थ अमेरिका में बहुत से लोग हैं जिनकी पॉकेट में रिवॉल्वर रहता है, और यहाँ तो रिवॉल्वर आसानी से मिल जाते हैं, तो क्या हर रिवॉल्वर रखने वाला खराब है? या रिवॉल्वर तो खराब नहीं, दैत कालिंगा यूज करेगा, साइंस खराब नहीं। 4 क्वेश्चन हो गए, समझ आए? જ્ઞાનમાં 5મા છેલ્લા ક્વેશ્ચન